time I'm wearing the cap. Yes, really your cap and your mask and all that stuff. Cap is on 24/7. Yeah. Your hair look lovely. You look lovely too. Thank you so much. So, so we just wait for the others to join. But it's so lovely to see your sessions. You do them so beautifully, and there's a lot of feel in your sessions. There's a lot of warmth in your sessions. There's a lot of real motivation in. That's the feel that you get out of these sessions from me. Beautiful. Thank you so much. Thank you so much. So you were there. You're doing Ashwin ma'am sessions. You're listening to her. I'm not attending actually. I'm not attending, but I listen to videos sometimes. Like I feel behind a little bit because I'm also attending Prachi's. Can you hear me? What happened? Oh, you're on mute. Yeah. Good afternoon, Mummy. Good afternoon, Hakeem. Good afternoon. Good morning. Good morning. Hello. Good afternoon. Is it my internet very low or? Yeah. I'm just checking if my internet is slow today also. So yeah, Dr. Alka, I think you can start because I think we can start. People will keep joining. You're on mute. You are on mute. We cannot hear you. Okay. So I started my journey with Dr. Deepa Chopra's patients about last year in June. So it's like a year's journey in this world. And I got a forward for Ashmin ma'am's magic book sessions, and then forward for Rajan sir's work of law of attraction in the last year in the month of August. So I did last year Rajan sir's workshop in August, and then after that I did enroll for Ashwin ma'am's session in October and November, and then I've been with her in this journey of SPMH for the past 4 months. So these have been really, really transformative. So earlier I used to be the one, I would never give any tips or anything. I was totally different and not totally to a very compassionate person. I would say, I would call it myself. I would still like to be very humble and very grounded, but there is a change in me. Like I've shared with Ashwin ma'am to regarding, I was focused on the skills and the talents and the expertise that was required in looking at the patients. But now I look at them from a holistic perspective as to the feel and the emotional content of what they are going through, and what else can I do for the patient? What else can I do? What else will benefit? What else can I do as far as I can? So this added another corner to it in my professional sphere. And of course, manifestation has been there, driving through me whole of the 2020 and 2021. It's given me a lot of strength in manifesting areas. Now, these days, I'm able to catch my feelings before I'm like if they're feeling alert, then pick up. If feelings alert, feelings drop, pick up your feelings. That's the key, because time you have to flip and visualize what you feel. Now, what am I doing currently? My routine. So I kind of wake up around 5 o'clock, sometimes 4:30, sometimes 5. So earlier I used to get up at 4 to 5. I would make sure I write my blessings and reread, and with a hand on the heart. So that's the most powerful thing, the very first thing you can do.
And even before you actually get out of the bed, once the moment you open your eyes, first you just scan your body, either just. We lost you, Dr. So today, Dr. Alka is here and she's sharing her own insights because she has been practicing this for a year now. And I think more than a year. She also does circulate this 21-day abundance program from Dr. Chopra. She has her own abundance group in Telegram also. Yeah, so we lost you, Dr. Alka. You can start again. Actually, again, you're on mute. If in the hospital, a better connection. So if we lose again, so, and then what I'm doing right now, then I journals after having done the source relationship class, then after doing the 10 lessons, I write one sheet for my mother-in-law, second sheet is my mother, third sheet is my mother, fourth sheet is my mother-in-law, fifth sheet is my husband. So I write these 5 sheets every. Oh, again, we lost her. Yeah, so she runs these groups. Oh, okay, she's here. You can start. I was just telling about you, like you have a Telegram group also for abundance, and there are like 2,000 people joined in that group. Okay, so you can start saying again, and you are again on mute. I think she's trying to get a better network connection. You're on mute, Dr. Alka. We can't hear you. Okay, so what I do is I write my 10 lessons, the first thing that I do, then I reread and read into them. And even before I get out of the bed, I scan my body and I just pay 2-minute gratitude for family, home, universe, morning, and 2 minutes. And then I touch the ground with my hands, and then I get out of the bed. And of course, magic morning, if you can remember, as we are using the washroom, then I have water with, I have kept my husband's and mine very nice. Of my bed, so I look at that's the first thing. And I also see that photograph in the night. I've also got in my wallet my husband's and mine photograph, then my 2 children's photograph, and right side is my own photograph and my own photograph with some cropping, some adjustments done. And in my wallet, I have kept passport size photographs of family members whom I want to do concentrated gratitude. So I don't have to refer to my mobile phone. And handy to do the concentrated gratitude every time. So then I do that. So morning I write 5 sheets. So I just pull out this passport size photograph of parents-in-law, husband, and then I do that. And then I'm attending MEM sessions, I'm listening. I do some Louise Hay's Power Mirror Magic. I've just started with Mridul ma'am. She's doing a fabulous job from 4:45 to 5:30. I've joined with her. So I'm trying to do that book because that has actually opened up and let me accept that I have but let me accept that. So judgment component has gone down with that. So it's really helped me in that manner. And then, of course, when I'm going to work, before I go down, of course, doing breakfast and everywhere, the magic ingredient, you say as much thank you as you can, as much of magic dust and everything as when I'm driving. When I go down,
there are trees in my park, in my society, I hug the tree, but not for 10 minutes, but whatever little bit I hug, but every day, it's the day that I don't hug a tree before I go to work, I feel incomplete or something incomplete within me. So I hug a tree and I thank my parents, my father-in-law and my father. So both I look up there, they are both up there, and I seek their blessings and I hug a tree. And it really gives me a lot of strength and grounding as well, because trees are really grounded down to earth. They fetch everything and they deliver it to us. So it's really, you can rise, you can go up the top, depends how strongly you're grounded as well. वो बहुत जरूरी है. And that's what they said, power will come to you. Humbleness is very, very important in this. Humbleness is very, very important. तो वो करके then I go drive, then I'm driving, doing dust and comfortably. Rush खत्म हो गया है, time component को respect करना मैं शुरू कर रही हूँ, so that I get integrity more and more and power in manifesting what you desire. So whatever time and honor you give your word to yourself, you honor it. Then I go to work and I keep my invisible manager with me all the time, to keep taking note of all my day as to what I'm grateful, so that I'm constantly up and up and up. And the moment I feel I'm slipping down, I take a headphone and I turn on ma'am's recordings of any day's magic session or secret or power session, and I pull myself up. And while I'm going to work and while I'm coming back from work, I do play the Power Books original audio in my car, so that wherever I feel, I just drop it. So it just says, जहाँ पे आपकी अटकन होती है वहाँ पर आपको क्यों मिलेगी. And at home, जब मैं कभी भी अटकती हूँ, तो you say you declutter yourself. So I start decluttering. कहीं से भी mind नहीं चल रहा होता, creation नहीं हो रहा था, तो I clear some drawer or some space, and or clear some digital space in my cell phone. But I think the physical space really clears your space and aura. And morning when I wake up, for 2 minutes, I do go out in the balcony. Earlier, I used to sit in the balcony and look at all the 5 elements and there only do my session and write everything. But these days, since I'm doing the mirror magic, so I'm in a room where I have got a large mirror. So I'm doing that. But I still go out for 2 minutes and feel the fresh air, do the magic air and 5 elements, gratitude, and gratitude to my ancestors, and and then I come back inside. So the whole day being journaling is very, very important. Writing is very important. Evenings, I'm trying to do mirror work these days before I go to sleep. And mirror work, though, like once it becomes a practice, you do it anytime. Anytime in the day, kabhi bhi lage, mirror work, peak state programming, give yourself any compliment, a pat or anything, mirror ke samne washroom mein jaake, and then or just do 5 jumps or 10 little fingers. I even did a step you. I even engaged somebody. I said, let's play step you and things like that at work sometimes, They bring the child inside you. Because that actually comes in the Louise's books, carry your child with you and pamper your child. And one day I had an afternoon nap with my child, I called one of my cousins, Manika, if you have any photographs of our childhood, do send. And she sent me 34 photographs, and I was just looking at it the Sunday afternoon, and I went off to sleep with that sweet little baby of myself. So that was beautiful. So, and follow your bliss. जो करना है अच्छे से करो, जो अच्छा लगता है वो करो. Like to-do list is very important. So after I've done all this, and I'm also in between making to-do lists, I have one small notebook where I just pull out a fresh page for each date. And I write in it, so that जो पिछले दिन का बचा हुआ होता है वो भी मेरे को कभी-कभी carry forward करना होता है, तो I do that as well. So I use a notebook, so that really helps me in my to-do list, and I give gratitude to all. And they say to-do list you have to carry it till your bedtime when the magic rock comes, and then you have magic blessings, so you can carry them all the whole day. So I'm currently working on writing 2 medical textbooks on Atlas on thyroid and parathyroid. So that's a lot of work that I shouldn't say a lot of work. That's an intense work that I'm trying to do, and I'm really seek all of your blessings to be able to complete it in the timelines, which is
getting close and submitted to the publisher. I'm really looking forward to these two, because somewhere lived across the countries, I feel that I've gained so much कि मेरे कंप्यूटर में और मेरे दिल और जहन में इतना सारा जो नॉलेज बबल कर रहा है उसको प्लीज निकाल के दुनिया में बांट के जाना है. So that's what I'm trying to bubble up and write my medical literature. So और कोई questions? Lunch time में I turn on Kapil Sharma, I turn on my songs and I listen and I have my lunch. So gossip बंद हो गई है, बिल्कुल भी बंद हो गई है. कहीं से भी कुछ भी बोल रहा है तो वहां से निकल जाना है. पता है ऑटोमेटिकली पोस्टिंग्स भी चेंज हो गई है फ्रीक्वेंसीज में ना. जब आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाती है, आप देखोगे जिनकी लोअर है वो आपसे आपके आपके ऑरा में, आपके रेंज में नहीं आ पाएंगे. आपको अपने आप को बस ऊपर करके और ऊपर ही रखना है. उसके लिए ग्राउंडेड बहुत जरूरी है. और अपने मूड शिफ्टर्स की लिस्ट हैंडी, वो कहते हैं एवरी 3 months लिखो, every 3 months dream list लिखो, every 3 months what do you like, what do you love, what colors, what fruits, what flowers, what all travel destinations, everything you write. So अभी तो नीलेश सर ने तो एक बोला what do you think you don't deserve, वो लिखो. And then अच्छा ये कल सुबह आ जाए तो चलेगा. So like that's where you stretch your imagination and create more possibilities. So that was also very interesting. And I've been blessed with all your company and all your support. And we are all seekers in the journey. We are all. मैं आपसे सीखती हूँ every day. You are all my teachers. When I come and listen to you, that means I am coming because I am gaining something from you. Anybody will not give their time and resource जब उन्हें लगेगा कि न कुछ नहीं मिल रहा है. So me coming to you, and I'm also giving gratitude to all of you on the platform for wonderful reading, wonderful sharings, great motivation. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Alka, for all your insights. It's really, I mean, it's very boosting to all the participants also and to me also. Yes, we all are seekers in this journey. And I mean, you are very doing lovely, so Alka great. You are doing so great. Thank you so much. Thank you so much. I mean, you are doing so much all together. I mean, this is remarkable, the way you are doing everything. And job also. Yes. Thank He's you. a very big doctor. Yeah. Thank you, Thank Dr. you. Alka. I ordered a trampoline, Rajan sir said, so that I do use for my workout. So I have to really make sure I actually am doing it. So abhi chhuta hua tha. So I'm trying to do that. So I got a trampoline, which was easier because then I don't have to put the mask and I can do the workout. So it's so easier. So, but I am trying to do it, and I need to get faster, more speed. So for that, I called Mr. Nilesh Surana this morning. He said, pay your attention on your intention. So that was very nice catchphrase. Mm-hmm. So he said, whatever, sometimes is raste aaye, is raste chalega, is raste chalega, is raste chalega. So now you pay your attention on your intention. So you stay with whatever your dream is. That's what ma'am also says, कि इधर आए, ये आपका सपना है तो ठीक है. ये आपका सपना नहीं है तो लौट के अपनी गाड़ी अपने सपने पे लेके आओ. ये अगर आपका सपना है तो उसको लिखो. हाँ, संकल्प बहुत जरूरी है. इसीलिए डे का इंटेंशन भी सुबह क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल. आपके ऐसे कोई सपने हैं जो भी पूरे हुए हैं ग्रेटिट्यूड की वजह से, अगर आप कुछ शेयर करना चाहो? मैनिफेस्टेशन फॉर माय डॉटर के इंडिया आने में 2020 फरवरी से दिसंबर तक मेरी बेटी वाज इन ऑस्ट्रेलिया. माय हस्बैंड वाज इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम फरवरी टिल अक्टूबर. छोड़ने गए थे कॉलेज. फेब्रुअरी सब हो गया था. सो आई वाज आफ्टर ज्वाइनिंग राजन सर, आई वाज मैनिफेस्टिंग कि इस क्रिसमस पे हम सब एक साथ होंगे. एंड फिर मैंने ये भी लिखा था हम गोवा एक हॉलिडे करेंगे जब हम सब चारों आएंगे. एंड आई वाज सो अमेज्ड कि मैंने वो हॉलिडे लिखा था, 4 दिन में प्रोग्राम कैंसिल भी हुआ था, फिर से बन गया. एंड वी ऑल वेंट टू गोवा एंड आई वाज लिटरली कलेक्टिंग ऑल द प्रॉप्स, डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग, गोवा के लिए नए टॉप्स, नई क्या एक्सेसरीज ले सकते हैं. एंड आई वर्क टुवर्ड्स इट. एंड
मेरी बेटी ने जब आना था तो मैं उसने 21 दिसंबर को आई थी. आई हैड बुक्ड फॉर 4 of us 2 rooms in Leela Kempinski Hotel in Gurgaon as our staycation with breakfast, lunch, dinner, gala staycation. मतलब because वो 11 months के बाद इंडिया आ रही थी. So that was my manifested. I manifested for our wedding anniversary. Our staycation, me and my husband stayed in a hotel for the first time. That was in November last year. So that was also manifested. December, my daughter's arrival and staycation, and that vacation was manifested. March, our Goa trip was also a manifested one. So collect all the props, do the booking. वो मैम used to say ना, make my trip देख के घुमा के खुश होके सो जाओ. फिर जहाँ मन करता है फिर ऑटोमेटिकली क्लिक होती है. So your favorite holiday destinations. So I used to do that to lift myself up and look at the bookings, look at the hotels, look at the places, and and then I would sleep happily. So many times before going to sleep, अच्छा कहाँ जा सकते हैं, अच्छा कहाँ जा सकते हैं, कहाँ का मौसम, कहाँ की feasibility है. So yeah, and ma'am also said like सोना तो खुश होके सोना, किसी भी गम में तो कभी सोना नहीं है. मूवी देख लो, जो करना है करो, बट खुश होके ही सोना है. So that is one thing I used to do. It helped me a lot. And money का भी मतलब opportunities are coming in. So I used to मतलब अब मेरा इतना है कि I say कि I have all the money as and when I need, it's there in my bank. तो अभी और आई एम वर्क टुवर्ड्स प्रोग्रेस है, बिकॉज 10 lessons to 1, तो वो करने के लिए आई एम बहुत लगेगा. सो दैट्स व्हाई आई राइट एंड आई राइट एंड आई राइट एंड आई राइट, बिकॉज मुझे बहुत लिखना है. सो मेरे जितना भी अकाउंट है, आई एम 50 years old, सो ऑल व्हाट आई वुड हैव सेड ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम, किसी के लिए भी तो बहुत सारी फॉरगिवनेस, बहुत सारा जर्नलिंग, बस लिखते जाओ लिखते जाओ. एक फेवरेट पेन है, उसकी पता नहीं कितनी रिफिल्स खत्म हो जाती है. 10 नोटबुक्स मेरी आई थिंक 2-3 महीने में, मतलब एक वीक में 1 या 2 नोटबुक रजिस्टर भर जाते हैं, बिकॉज आई राइट एंड आई राइट एंड आई राइट, एंड दैट्स अ वेरी नाइस वे टू लेट आउट. And now these days I'm doing affirmations in front of the mirror in the morning and in the night. I'm trying to do 10 minutes, so mirror work, one chapter I try and do. Yes, thank you. Yeah, thank you so much. Thank you, doctor. It was a wonderful sharing. Very inspiring. Thank you so much. Thank you so much. आप सब लोग भी मुझे बहुत इंस्पायर करते हो. You all inspire me every day. ऐसा लग रहा है कि आप इतना सारा कैसे करते हो. मैंने आपको इतना सारा कैसे कर लेते हो आप. मैंने आपको रूटीन भी बताया. लंच टाइम में तो म्यूजिक एंड ब्रेक होता है. घर पे आके मतलब I am supported with my husband. My 2 children are at home. I have 2 maids who look after everything. Maids का भी gratitude चलता है. So I am very fortunate, very blessed to have, मतलब इतने सारे लोगों से इतना सपोर्ट मिलता रहता है. अपनी फीलिंग्स को पकड़ना आपको जिस दिन आ गया ना, फ्लिप द स्क्रिप्ट टू डिजायर्ड आउटकम. आप ही बोलोगे अरे ये तो ऐसा है, तो सोचो अच्छा ये ऐसा हो जाए तो कैसा चाहिए, अच्छा चाहिए कैसा ये बंदा आपको, उसको फ्लिप कर दो इंस्टेंटली अपने दिमाग में, और उसको मैनिफेस्ट करो और उसको लिख लो. ही इज सो काइंड, ही इज सो सपोर्टिव, ही हेल्प्स मी विद ऑल दैट. तो वो आप अपनी इमेजिनेशन को ना रियलिटी में लेकर आ जाओगे. कभी भी किसी भी सिचुएशन में करो. एंड ये सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. आप इसको अपने एडवांटेज में यूज कर रहे हो या फिर अपनी वरी से यूज कर रहे हो. सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है. सही है. यानी हम अपने मैनिफेस्टेशन, अपने स्विच करने से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं. सभी चीजें हमारे हाथ में ही है. हम वी आर द क्रिएटर्स and of our life, and as Dr. Alka said that we have to switch the script at that moment. Whenever we feel low, whenever some negative things are coming in our life, what we can do at that time is कि ऐसा सोचो कि अगर ये नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा वो सामने वाला अगर आया है तो वो कैसा होना चाहिए.
तो ये सब चीजें आप अपने दिमाग में हमेशा सोच सकते हो। मैंने भी ये सब चालू किया है कि जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है, मान लो बच्चों के साथ आती है, हस्बैंड के साथ, या वर्क पे आती है, कुछ भी आती है, तो मुझे क्या चाहिए वो मैं उस पे फोकस करती हूँ। सो वो बहुत जरूरी है कि कैसे आपको कोई चीज चाहिए उस पे आप ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ व्हाट यू डोंट वांट, जो हम पावर बुक में भी अभी पढ़ रहे हैं एवरी डे। तो ये सब बहुत जरूरी है। और इंटेंशन, जैसे डॉक्टर अलका ने भी कहा, इंटेंशन आप अपना सेट करें इन द मॉर्निंग ओनली, और ऑल्सो फॉर योर लाइफ, कि आपको अपनी लाइफ में भी क्या करना है। जो भी आपके ड्रीम्स है, तो ड्रीम्स का भी इंटेंशन जो उसमें आप लिखते हो उसको हमेशा याद रखो कि आप किस तरफ जा रहे हो। क्योंकि डायरेक्शन आपके पास, भले अभी डायरेक्शन मान लो नहीं भी होगा, क्योंकि वो अभी हम सब कर रहे हैं, पर एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है अपनी लाइफ से। अगर आप क्रिएटर हो तो आप कैसी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, ये बहुत जरूरी है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर अलका। सो वी विल गेट स्टार्टेड विथ आवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग. So everyone keep your videos on. Let me bring my phone. All right, so let's do our peak state program, which is very, very important for us. Okay. Raise in a running position. Let's all do our peak state program. Just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Very nice. I'm the winner. And you say to Yes, yourself, we all are I'm the the winners. winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. And now you say to yourself, yes, I'm the winner. Yes, I'm the winner. We all are I'm the winners. I'm the winner. We are all open and receptive to all And good now in our life. We say to ourselves, I can. I Okay, can. repeat. I can. I will. I will. I must. I must. I can. I will. I must. Thank you. So And today is the best day of my life. Thank you. Okay, so who would like to read today? Anyone wants to read? I'll read. Okay, thank you, Yamina. Okay, let me share the screen. Welcome. So today's chapter again is very
magic chapter, magical morning. So let's start reading. Okay, so what do you all see in this picture? It's a bathtub. There is a bathtub and magical sparkles are coming out of the water from the bathtub. So it's a magical morning. Everything in the bathroom, like the magical sparkles are there, coming from the sunrise. Also, you can see coming from the bathroom, and it's about all magical morning. So let's read. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Said by Marcus Aurelius. He was a Roman emperor. The easiest and the simple way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the day. Yes, so when you fill your morning, so now everybody, like I don't know what your routine is or what your routine was, and because of this practice, because of this magic book, your routine might have changed now. अभी आप ज्यादा मॉर्निंग में उठने के साथ आप ग्रेटिट्यूड फील करते होंगे अपने बॉडी के लिए, मदर अर्थ के लिए, लाइफ के लिए. तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है जब मॉर्निंग में आप जो भी करते हो उठने के बाद वही डिसाइड करेगा आपकी लाइफ कैसे, आई मीन आपका दिन कैसा होगा, और वही डिसाइड करेगा आपकी लाइफ कैसे होगी आगे जाके, बिकॉज यू आर प्लांटिंग द सीड्स राइट नाउ. सो ये जो भी है मैजिकल मॉर्निंग का जो भी रूटीन ये वृंदावन हमें सिखाएगी, ये रोज रोज करना बहुत जरूरी है, आपको बहुत उससे फायदा होगा. So let's read further how to do that. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident. Then the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happens before your very eyes. So यहाँ पे क्या बोल रहे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग ये प्रैक्टिस जो आज हमें वृंदावन सिखाएगी वो आपका कोई ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लेने वाली है. आप अभी अपने देखना अपने खुद के रूटीन में अब क्या करते हैं मॉर्निंग में. जनरली जब ये मैजिक बुक नहीं थी हमारी लाइफ में तो हम क्या करते थे, उठ के वही हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते थे या पूरे दिन में वरी उठते थे. या एग्जैक्टली वरीज चलती थी माइंड में कि क्या करना है, कैसे होगा, इतना सारा काम है या ये सब करना है. यानी जो भी रूटीन होगा, मुझे नहीं पता आप सबका क्या रूटीन है, पर अभी आपको ये पता चल गया कि हाँ हमारी मॉर्निंग इतनी इम्पोर्टेंट है. जैसे ही मॉर्निंग में आप उठते हो ग्रेटिट्यूड लिखते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर अभी आप ग्रेटिट्यूड नहीं भी लिख रहे हो तो ये क्या मॉर्निंग रूट अभी आज सिखाएंगे वृंदावन वो हमें करना है. अनदर चीज क्या है कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव, क्योंकि कॉन्शियसली हम अभी भी इतने अवेक नहीं होते हैं. तो उसी टाइम पे अगर आप ये अंदर भी अपने थॉट्स के अंदर एक हैबिट बना लेते हो शुक्राना की, उठने के साथ तुरंत ही आप शुक्राना करते हो स्टार्ट मन में ही, तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट आपकी बन जाएगी और वही तय करेगा आपका दिन कैसा होगा, आपकी लाइफ कैसी होगी.
तो ये एक हैबिट लगती है, इसकी प्रैक्टिस लगेगी, पर जैसे ही ये प्रैक्टिस में आ जाएगा उसके बाद ये बहुत आसान है। जो भी है ये एक एडेड बोनस हो जाता है आपकी लाइफ में, मॉर्निंग का एक रूटीन बन जाता है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। When you wake up to new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's conceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for the another day of your life. Yes, so this is so important. When you wake up, first thought that should come into your mind is thank you. जब भी उठते हो, सुप्रीम पावर का उनका ग्रेटिट्यूड करना इतना जरूरी है और इतना फायदेमंद भी है अपने खुद के लिए। तो जैसे ही उठते हो, से द मैजिक वर्ड थैंक यू। ये एक हैबिट लगेगी इनिशियली, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस लगेगी इनिशियली, पर एक बार हैबिट हो गई फिर आप कभी मिस नहीं करोगे। जैसे अभी मेरी हैबिट है, उठने के तुरंत बाद में 3 चीजों के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मदर अर्थ, मेरी खुद की बॉडी के लिए, और सुप्रीम पावर को ये लाइफ एज ए गिफ्ट देने के लिए, अनदर डे एज ए गिफ्ट देने के लिए, कि इतना अच्छा जो भी कल मान लो कल हम सोए थे, कुछ दर्द था, जो भी था, पर आज हम जब उठते तो एक नई उमंग के साथ उठते हैं। हमारे बॉडी में भी नई तरह की एनर्जी होती है हमेशा। तो ये एक नया एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, जो पैशन है जीने का, वो सब हम हमारे मॉर्निंग में डाल सकते हैं। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Say thank you for the good night sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your homes, so you can turn a tap and receive beautiful, clean hot water. Thank you. As you reach your bathroom and as you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. So जैसे ही हम उठते हैं मॉर्निंग में, तो हमें जैसे ही हमारा पैर हम जमीन पे रखते हैं, जैसे ही हम हमारे बेड को देखते हैं कि हाँ, ये हमारे पास इतना अच्छा बेड है, पिलो है, जो भी कुछ हम लेके सोते हैं तो वो है, कितना सब कुछ है हमारे पास जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं मॉर्निंग में। हमारे पास एक अच्छा बाथरूम है जहाँ पे जाके, और ये भी सोचे कि ये पानी अगर अपने घर में आ रहा है तो कैसे आ रहा है, किसी ने वो डिग किया है, किसी ने पाइप्स लगाए हैं अक्रॉस द कंट्री, थ्रू आउट द सिटी, जिनकी वजह से हमारे घर में, सोचो पानी के बिना हमारी मॉर्निंग कैसी होगी। जस्ट सोच के देखो, विदाउट अवर वाटर क्या होगी हमारी पानी के बिना हमारी मॉर्निंग। तो पानी के लिए, क्लीन वाटर जो अपने घर में आ रहा है उनके लिए हमेशा थैंक यू करें। जो भी आपका रूटीन है मॉर्निंग का, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सभी के लिए जो भी आप यूज करते हैं।
तो उसके लिए थैंक यू बोले. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Okay. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for your shoes. Yes, so ये कितनी अच्छी बात है कि एक छोटी छोटी चीजों में आप देख सकते हो कि आप कितने ब्लेस्ड हो. ऐसी ऐसी कई कई चीजें हैं जो हमें मिलती है पर हम कभी सोचते ही नहीं उसके बारे में. जैसे ये इन्होंने अभी क्लोथिंग की बात की कि क्लोथिंग हमें मिल रहा है, वेरियस आइटम्स. पता नहीं कौन सी कंट्री में से हमारे पास क्लोथिंग आती है, ये सब शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, जो भी. और कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की कुछ न कुछ किसी ने बनाया है तो ही हम अभी एंजॉय कर पा रहे हैं. उसमें भी जैसे पावर बुक में हम पढ़ते हैं कितना प्यार डाला होगा किसी ने, तब जाके ये सब इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेंशंस हुए हैं. अलग अलग प्रकार की नई नई मार्केट में कुछ न कुछ फैशंस आती रहती है या क्लोथिंग के अलग अलग फैब्रिक्स आते रहते हैं. कितना सारा कुछ है हमारे लिए लाइफ में जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं और जिनके लिए हमने कभी एक्चुअली थैंक्स नहीं दिया. तो ये सब चीजें भी सोचे, शूज के बारे में सोचे कि शूज का भी एक अलग ही टाइप का रिवॉल्यूशन हुआ था जब ये स्नीकर्स टाइप के शूज निकले थे. उस टाइम पे मैंने उस टाइम पे ये पढ़ा था कैसे नाइकी और ये सब कंपनीज, एडिडास है, ये सब कंपनी ने कैसे वो शूज को इस तरह से फाइंड किया कि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो. तो ये सब चीजें भी अगर हमारे पास ऐसे शूज है जिनमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं तो हम कितने लकी है. ऐसे कैसे कितने लोग हैं जो कंट्री साइड में, रूरल एरियाज में जो रहते हैं, गाँव में, जिनके पास शूज नहीं है. वो ऐसे ही शूज के बिना कितनी जगहों पे वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं. तो हम हैं, हमारे पास ये सब चीजें हैं. और हमारी अभी कैसी आदत है कि हम वो ही देखते रहते जो हमारे पास नहीं है. पर अगर हम ये देखने जाए कि हमारे पास क्या है तो आई मीन इट्स माइंड ब्लोइंग कि हमारे पास क्या क्या चीजें ऑलरेडी है. तो ये बहुत ही અલેફિયા મેં શૂઝ માટે, કબાટ માટે, સ્ટોર માટે, પછી વોટરના જે આપણે ટેન્ક હોય છે ભરવા માટે, બધા માટે ગ્રેટિટ્યુડમાં લખ્યું છે. વાંધો નહીં ને? yes you should write everything. શૂઝ માટે બી મેં લખી દીધું. શૂઝ માટે બી મેં લખી દીધું કે શૂઝ પહેરીએ છે તો અમને કેટલા કમ્ફર્ટ મળે છે. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो यस, तो आपको सभी चीजों के बारे में सोच सोच के यस लिखना है, लिख लो. पर सुबह सुबह में अब जब आप कपड़े पहनते हो, टूथब्रश करते हो, शूज पहन के अगर बाहर जाते हो, काम पे जाते हो, तो ये सभी चीजों के लिए एटलीस्ट मन में शुक्राना करना बहुत जरूरी है. ओके, लेट्स रीड फर्दर. आमिना. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning, said by J.B. Priestley, writer and a playwright. सो यहाँ पे क्या बोलते कि चलो पिछले दिन में जो भी हुआ, पर अभी जो प्रोस्पेक्ट है, नए दिन का जो प्रोस्पेक्ट है, कुछ फ्रेश आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज है, कुछ अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी है, बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है ऑलरेडी लाइफ में. तो जब भी आप अपना दिन स्टार्ट करें, बहुत ही अच्छे माइंड से स्टार्ट करें कि चलो ये दिन कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ला रहा है या कौन सा कुछ नया है जो मैं ट्राई कर सकती हूँ. You know, there are so many things that you can try each day. कुछ नया करो जिनसे आपको खुशी मिलती है. कभी कभी कुछ नया ट्राई करो, भले कोई ऐसी भी चीज है कि जो
आपको अच्छा लगेगी या नहीं भी लगेगी, पर एटलीस्ट ट्राई करो। आपको खुद को पता चलेगा, आप अपने आप को डिस्कवर करोगे। जब आप कुछ नया नया ट्राई करते हो, आप खुद को पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या पसंद है या मुझे क्या नहीं पसंद है, क्या मेरे लिए है या क्या नहीं है। तो ये सब चीजें भी आपको, जैसे जैसे आप ये जर्नी में आगे बढ़ोगे, तो आपको ही एहसास होगा कि हाँ मेरी लाइफ में कितना कुछ करने के लिए है, you know. So yeah, let's read further. અત્યારે ડિલિવરી બોય આવ્યો ને મેં એને 20 રૂપીસ આપ્યો, એટલો બધો ખુશ થઈ ગયો કે તમે મને આપ્યા પૈસા? મેં કીધું હા તને આપ્યા. તો કહે છે કે હું એન્જિનિયરિંગ કોલેજ કરું છું, પણ મારે 50,000 ફી ભરવાની હોય છે, તો અત્યારે હું આ ખાલી ડિલિવરી બોય નું કામ કરું છું મારે ફી કલેક્ટ કરવા માટે. એટલો ખુશ થઈ ગયો 20 રૂપીસ આપે કે તમે મને આપ્યા છે? મેં કીધું હા તને જ આપ્યા છે. Yes, so you can make somebody's day so beautiful and so precious just by giving thanks. Like एक one gesture होता है जो thanks का, वो मनी में अगर देते हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके सामने आपको तो क्या कितना भर भर के मिलेगा। आप अगर किसका ये दिन, किसकी एक स्माइल बना देते हो दिन में। सो मम्मी थैंक यू सो मच शेयरिंग के सबको बहुत इससे फायदा होता है जब आप भी कुछ शेयर करते हो। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your mornings so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast: the refrigerator, hot plates, oven, toasters, coffee maker, or kettle. Every day without expectation, I say thank you. Thanks. Yeah, I will actually reiterate this whole paragraph. So, hello. ડેલી હું આ બધાના માટે શુક્રાના કરું છું, એક વસ્તુ માટે ઉઠું એટલે હવે શુક્રાના ચાલુ કરી દીધું છે. ચા બનાવતી વખતે દરેક વસ્તુ ટૂથબ્રશ કરતી પહેલા બધામાં શુક્રાના કરી દીધું છે. Very nice, very nice. So yeah, anybody who is not following the routines really get inspired, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ती है। इनिशियली आप भूल जाते हो, मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं भूल जाती थी, पर अब कैसा होता है कि मैं खुशी इतनी होती हूँ सुबह उठ के, जो मैं लिखती हूँ उसके बाद मैं इतनी खुश होती हूँ कि मैं जो भी चीज को टच करती हूँ, ऐसे तो अपने आप अंदर से थैंक यू निकलता ही रहता है पूरे दिन में। तो आपको भी एक प्रैक्टिस बनानी होगी। इनिशियली आपको ये एफर्ट्स डालने होंगे कि हाँ मैं जो भी चीज लेती हूँ, मैं जो भी यूज करती हूँ अपने किचन में, ब्रेकफास्ट में, अगर आप चाय पूरा बनाने जाते हो तो पतीली आप जो लेते हो चाय के लिए, चाय पत्ती के लिए, शुगर के लिए, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो आपकी मॉर्निंग को और ज्यादा अच्छी करने के लिए, एंजॉयबल करने के लिए, सभी चीजों को थैंक यू बोले। और ये खाली आज की प्रैक्टिस नहीं है, जैसे मम्मी ने बोला कि रोज करती है, वैसे आप लोग भी रोज ये प्रैक्टिस करो। जैसे रोंडा बननी दिन के लिए ये प्रैक्टिस दी है, कल के लिए, पर आपको ये रोज प्रैक्टिस करनी है। कैसे भी करके ये याद रखना है कि हाँ मैं जो भी चीजों को हाथ रखती हूँ, जब भी मैं उठती हूँ या उठता हूँ, उसी टाइम पे मुझे ये थैंक यू की प्रैक्टिस करनी है इन ईच एंड एवरीथिंग यू टच। सो ये एक बहुत ही अच्छा रूटीन है। अगर आप ये रूटीन एक बार करोगे तो दिन में अगर कुछ भी आए तो आप ऑलरेडी रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो कोई भी चीज आने के लिए। अगर आपका दिन बहुत बिजी है वर्क के ऊपर या घर में कुछ भी है, तो भी आप प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी,
क्योंकि आपकी मॉर्निंग ही इतनी अच्छी गई है ग्रेटिट्यूड के साथ. ઓકે. નફીસાના કારનું ટાયરનું સાંભળ્યું ને તો મેં તરત જ ગ્રેટિટ્યુડ સ્ટાર્ટ કરી દીધા કે એને જલ્દી ઘર તરફ આવી જાય. શુક્રાના તરત જ કરી દીધું. એને ટાયર ફાટી ગયેલું એટલે આજે એ થયું તો મેં એને શુક્રાના તરત જ કર્યું. यस यस. सो ये सब चीजों में प्रैक्टिस लगती है. कुछ भी अगर आता है आप अपना माइंड फोकस अपना पूरे शुक्राने पे लगा दे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम. सो ये भी एक बहुत ही अच्छी उन्होंने शेयरिंग की कि जब कोई प्रॉब्लम भी आती है लाइफ में, अपने बच्चों के ऊपर आती है, किसी के भी ऊपर आती है, तो आप तुरंत ही शुक्राना चालू करें. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Scroll. Okay. Every day without expectation, I say thank as I put on foot on the floor and say, you are my other foot touches. Sorry, again I'm reading. Every day without expectations, I say thank as I exception put one without foot exception. Exception. Okay, without any exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor as as both feet touches the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I am even more grateful, which speeds up the magic, which even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you. Well, that's what it's like after doing magic morning, but multiplied. या सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही वो अपना एक पैर जमीन पे रखती है थैंक बोलती है, फिर जैसे ही दूसरा पैर जमीन पे रखती है यू बोलती है. यानी बाय द टाइम शी रीच द बाथरूम वो ऑलरेडी बहुत बार थैंक यू बोल चुकी होती है. फिर वो जो भी अपना रूटीन करती है, जब तक वो अपना रूटीन फिनिश करती तब तक तो बहुत बार थैंक यू ऑलरेडी बोल चुकी होती है. और जब तक वो ये बोलती है उसके बाद तुरंत ही शी कुड जंप फॉर जॉय. तो एक्चुअली इतनी सारी बार थैंक यू बोलने के बाद आपके अंदर वो एक आ ही जाता है, एक फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स आ जाती है कि आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा फील करने लगते हो. और जैसे ही आप अच्छा फील करने लगते हो वो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेज रहे हो और वैसी ही चीजें आपको वापस मिलेगी. तो एक मॉर्निंग में आपने कभी ये नोट भी किया होगा कि जब आप अच्छे मूड में उठते हो तो जैसे लगता है कि सभी चीजें अच्छे से जा रही है, और जब भी आप बहुत नेगेटिव मूड में उठते हो तो लगता है कि एक के बाद एक ऐसी कुछ ना कुछ चीजें होते जा रही है जो आप नहीं चाहते हो. तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉर्निंग रूटीन है. आपको अगर मैजिक मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये मॉर्निंग जरूर करें रोज. और जितनी ज्यादा बार आप थैंक यू बोलोगे इतनी बार इतनी और अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे. आमिना, आपको कुछ पूछना है? हाँ, वो स्टार्टिंग में जो लाइन से ना आई से यू वाला वो थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई पढ़ने में. हाँ, ये था जैसे ना आई every day without exception. Without exception, I said thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor. So मैंने बोला तो जैसे कि वो एक पैर रखती है तो थैंक बोलती है, और जैसे ही दूसरा पैर रखती है तो यू बोलती है, यानी थैंक. अच्छा, वैसे. ओके 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 ओके, नाउ गॉट क्लियर. थैंक यू सो मच. या नो प्रॉब्लम. सो जैसे ही वो अपने दोनों पैर रखती है तब वो ऑलरेडी थैंक यू बोल चुकी होती है.
फिर वो जैसे जैसे अच्छा। स्टेप्स लेती है तो वापस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती है, जैसे हम मैजिक स्टेप्स में करते हैं। तो जब तक वो बाथरूम तक जाती है तो कई बार ऑलरेडी थैंक यू बोल चुकी होती है। આજે અમે और તારા ઘરેથી 2 વાગે આવ્યા. 2 વાગે આવ્યા પછી મને બાથ લેવાનો હતો, નમાઝ પડવાની હતી, જમવાનું હતું, તારું સેશન માં જોઈન થવાનું હતું. તો બધું મેં એકદમ એનાથી કરીને તારા સેશનમાં જોઈન થઈ ગઈ. अरे वाह, सरस. हम्म. Okay, so let's read मैजिक प्रैक्टिस नंबर 11. सो अभी सभी को क्लियर है ना मैजिक प्रैक्टिस क्या है? ये 11 नंबर 11 आपको मॉर्निंग में उठ के जितनी बार हो सकता है उतनी बार आपको थैंक यू बोलना है. इन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट भी दे दिया कि कौन सी चीजों के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो. अगर आप अभी ऐसे पर्सन हो जो उठ के तुरंत आपका ग्रेटिट्यूड लिखते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है. तो अपनी पेन के लिए, अपनी बुक के लिए थैंक यू बोले. जो चेयर पे आप बैठ के करते हो उसके लिए थैंक यू बोल दे. आपकी नाइट अच्छी गई, आपके बेड के लिए, सभी चीजों के लिए थैंक यू बोले. आपने जो कपड़े पहने वो बहुत कंफर्टेबल है उसके लिए थैंक यू बोले. जो भी चीजें आप सुबह में याद कर सकते हो सभी चीजों के थैंक यू बोले. ओके, सो लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 11. Okay. Magic practice number 11, a magic morning. Number 1, when you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. Third, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful as that blessings as you can. Fourth one, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. So this is a wonderful practice. I would suggest you do this practice every single day and all your days will be really, really magical. And I mean, when I wake up and whatever my routine is, I do mirror work also and all that things. And I'm very, very grateful for my mirror that I can do the mirror work. So whenever, then I do this session. After the session, I go and look at my sunrise. And it gives me immense feel of gratitude. Sometimes if I forget, sun will keep showing me to itself. So ऐसा भी होता है कि अगर कभी कभी मैं भूल जाती हूँ सनराइज स्पेशली जाके देखना, तो वो मेरे सामने आता है कि तू आज मुझे भूल गई है. और इतना मुझे प्यार देता है, इतना मुझे लगता है कि वाव, लगता है कि कितनी सारी चीजें हैं जो मुझे हमेशा ब्लेस करती है लाइफ में. कल ऐसा हुआ था कि कल मॉर्निंग में मैं जब 4:30 को उठी तो मेरे रूम में ही विंडो है बेड के पीछे. तो जैसे ही मेरे विंडो में आया, जैसे ही मेरी आंखें गई, जैसे ही मेरी नजर गई विंडो में, तो मैंने तुरंत इतना अच्छा क्रिसेंट वाला मून देखा उस टाइम पे. तो मून देख के साथ में मैं इतनी स्लीपी थी तो भी मैं इतनी खुश हो गई. वाह, मतलब मुझे लगता है कि ये सब मेरे साथ है हमेशा ही. ये सब वो सब चाहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो, और वो सब चाहते हैं कि मैं लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ूं. कुछ भी जो भी मैं करूं वो बहुत शिद्दत के साथ करूं, अच्छे इंटेंशन के साथ करूं, प्योर हार्ट के साथ करूं. और ये सब मुझे साथ दे रहे हैं. जो भी मेरा ये एक कनेक्शन है सुप्रीम के साथ, ये सब चीजों के साथ, नेचर के साथ जो कनेक्शन है, मैं जैसे डॉक्टर अलका करते वैसे सेम वे आई ऑल्सो हग अ ट्री. और ट्री हमें जो सिखाता है कोई नहीं सिखा सकता लाइफ में. ट्री हमें सिखाता है कि कितने भी आप कहीं पे भी जाओ, आप हमेशा ग्राउंडेड रहो, अपने रूट्स को हमेशा मदर अर्थ में फैलाओ. जितने आपके रूट्स फैलाएंगे इतने आप ऊपर आगे बढ़ेंगे. तो वो सेम चीज है कि हमें हमेशा ही ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है. कोई भी किसी के भी साथ, इट डजंट मैटर व्हाट पर्सन ही और शी इज, हमें हमेशा अपनी ओर से हमेशा ही ग्राउंडेड रहना है.
हमेशा हम्बल रहना है, कोई भी हमें अप्रोच इजीली कर सके ऐसा एक पर्सन बनना है हमें किसी के भी लिए। तो this morning routine is wonderful, please do it, don't discount it, again I'm saying. So okay, let's read our power book. It's a new chapter, the feeling frequencies. तो हम अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हम हमारी फीलिंग्स कैसे सब कुछ अफेक्ट करती है। ओके, गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, उसका सर्कल कैसे चलता है, क्योंकि गुड फीलिंग्स विल ब्रिंग मोर गुड फीलिंग्स एंड बैड फीलिंग्स विल ब्रिंग मोर बैड फीलिंग्स। और कैसे हम हमारे थॉट्स की वजह से, हमारे विचारों की वजह से हम अपने आप को कैच कर लेते हैं, ऐसी चीजों पे जितना फोकस करते जो हमें नहीं चाहिए, वो एक केज की तरह हमें बंध के रखता है और उसमें और बार्स लगते ही जाते हैं। तो अभी अगर हमको अपने आप को फ्री करना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा ही अपने आप को गुड फीलिंग जोन में रखेंगे। वो हमने जो चार्ट देखा आगे, वो चार्ट आप अपने पास हमेशा ही रखे। अगर आप कर सकते हो तो अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर में यूज कर ले, तो जब भी आप अपना मोबाइल खोलते तो वो चार्ट आपके सामने आता है और तुरंत ही आपको याद भी रहेगा कि अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ। जैसे आज डॉक्टर अलका ने भी शेयर किया था, वो हमेशा अपने फीलिंग्स के ऊपर ध्यान रखते हैं कि क्या वो फील कर रहे हैं अभी ये मोमेंट में। तो आपको भी ये सब चीजें, इसीलिए हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये सब चीजों का, कि हमें हमेशा ही याद दिलाता रहे कि अभी हम क्या फील कर रहे हैं, वो हमें चेक करना है। और ये आज हम सीखेंगे कि ये फीलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे सब कुछ अफेक्ट करती है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। let's start reading this book. Yes, sure. If you can feel it, you can receive it. Everything in the universe is magnetic, and everything has a magnetic frequency. Your feelings and thoughts have magnetic frequencies too. Good feelings mean you are on a positive frequency of love. Bad means you are on negative frequency. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency. And like a magnet, you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. If you are feeling enthusiastic, shall I? Yeah. Okay. If you are feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people, situations, and events. If you are feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations, and events to you. You are never left in any doubt about the frequency you are on, because your frequency is always exactly whatever you are feeling. You can change your frequency at any time by changing how to feel, and everything around you will change because you are on new frequency. Very helpful to you. Yes, so अभी ये क्या बोल रहे हैं कि एक तो फर्स्ट तो आपको हमेशा अवेयर रहना है what you are feeling, right? अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पे हो, यानी मैग्नेट की तरह आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ऐसे इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करोगे जो सेम फ्रीक्वेंसी पे होगी। अगर आप एंथुजियास्टिक फील कर रहे हो तो वो एंथुजियाज्म वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे ही टाइप के लोगों को और सर्कमस्टेंसेस को अपने आपके तरफ खींचेगी। अगर आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पे हो जहां पे आपको डर लग रहा है किसी चीज का, तो सेम टाइप के लोग और सिचुएशंस आपके सामने आएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसी टाइम पे इस मोमेंट में क्या फील कर रहे हो। अगर आप तुरंत ही नोट करो कि हाँ मैं अच्छी फ्रीक्वेंसी, मैं अच्छे फील नहीं कर रहा हूं, तब तुरंत ही क्या करोगे आप? इट्स वेरी सिंपल, यू चेंज योर फ्रीक्वेंसी और फिर आप अपनी नई फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे। वो जो भी फ्रीक्वेंसी है फियरफुल वाली, आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। आप ये अपने हाथ में लेके उसको चेंज कर सकते हो। और वो कैसे करोगे, ये जैसे हमें रोंडा बर्न ने इस बुक में भी दिखाया है
और आगे भी हम आके पढ़ेंगे कि आपको अपने मूड शिफ्टर्स यूज करने होंगे। जैसे डॉक्टर अलका ने भी शेयर किया कि वो कपिल शर्मा शो देखती है या कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लेते हैं जब भी वो कुछ भी अगर लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं तो जाके मैजिक स्टेप्स ले लो, या फिर जो भी है ट्री को हक करो, जो भी आपको अच्छी फ्रीक्वेंसी में वापस ला सकता है ऐसी चीज करो उस टाइम पे। अगर मान लो आप फंसे हुए वहां पे, आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन है, तो भी एटलीस्ट आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो अपने माइंड के अंदर। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड करोगे वैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, एंड देन यू विल बी ऑन अ न्यू फ्रीक्वेंसी लेवल, so we'll again start attracting new things in your life, whatever is on that frequency. So ये समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप अगर आपके सपने हैं और हमेशा ही आप सोचते रहते हो कि मैं ये सपनों को कैसे साकार करूं, तो यानी आप वो सपनों के लिए अगर आप ऐसा सोचते हो कि हाँ मुझे ये मिल गया है, ऐसी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पे जब आप आ जाते हो तो आप एक मैग्नेट बन गए ऑलरेडी, समझ लो। आप इतना जल्दी वो अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करोगे जब आप रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। You can take any situation in your life and even possible outcomes of that situation can happen. Any outcome can happen because you can have any feeling about about the situation. A relationship can be on a happy, joyful, exciting, satisfying, and every good feeling frequency. A relationship can also be on a boring, frustrating, worrisome, resentful, depressing, and even bad feelings frequency. Any outcome of that relationship can happen. And the way you feel determines exactly what will happen in that relationship. Whatever feelings you are giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationships. If you are feeling joyful about the relationship, most of the time you are giving love and you must receive love and joy back through that relationship because that's the frequency you are on. तो यह भी यहाँ पे एक समझने की बात है कि आपको मान लो आप कोई सिचुएशन में हो तो आपका ये क्या वर्स्ट आउटकम हो सकता है वो भी आप सोच सकते हो, क्या बेस्ट आउटकम हो सकता है वो भी आप सोच सकते हो, और वही जो भी फीलिंग्स में आप होंगे वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो सिचुएशन में। तो मान लो कि चलो आपकी किसी के साथ आर्गुमेंट हो गई, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे इन्होंने भी बोला कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हो वैसा ही आपका रिलेशनशिप होगा। तो मान लो आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई है उस टाइम पे और आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तुरंत ही आपको स्विच करना है। कैसे स्विच करोगे? ये सोच के अभी भूल जाओ कि वो जो भी है वो पर्सन है जिनके साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई, इट्स ओके, जो भूल जाओ वो पर्सन अभी क्या है। आपको क्या ध्यान में लाना है कि आपको वो आपका रिलेशन आप उनके साथ क्या चाहते हो। तुरंत ही अगर आप क्या चाहते हो वाली फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे तुरंत ही चीजें चेंज होने लगेगी। और बिलीव मी ये आसान नहीं होता है, मेरे साथ भी बहुत बहुत बार होता है। कई रिलेशनशिप में हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं, धीरे 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 अभी मेरे भी कई सारे चीजें ऐसी है जो बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज हो रही है। क्योंकि आप जब ग्रेटिट्यूड, हाँ ये बात बहुत ही अच्छी है, अगर रिलेशनशिप में ऐसी कोई बात हो जाती है तुरंत ही पेन पेपर लेके ग्रेटिट्यूड करना चालू कर दो। तो जैसे ही ग्रेटिट्यूड करोगे एटलीस्ट आप लेवल पे आ जाओगे, अच्छे वाले लेवल पे। अगर आप नेगेटिव में जा रहे थे, लो वाली फीलिंग में जा रहे थे, एटलीस्ट आप अभी न्यूट्रल पे आ गए हो ग्रेटिट्यूड करके। अभी आपका माइंड इतना थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ पे सोच पाओगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो रिलेशनशिप में। मान लो किसी के साथ मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि आर्गुमेंट हो गई, उस टाइम पे आप नेगेटिविटी में चले गए, कोई बात नहीं, अपने आप को कैसे भी करके लाओ एक अच्छी वाली फ्रीक्वेंसी पे।
एटलीस्ट न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी पे भी ले आओगे तो उसके बाद आप सोच पाओगे कि एग्जैक्टली मुझे ये रिलेशनशिप में चाहिए क्या। जैसे इंटेंशन आपका बहुत जरूरी है। अगर रिलेशनशिप में भी आपको पता नहीं कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो आप गोते खाते ही रहेंगे वहां पे। तो इसी तरह इसीलिए आपको ड्रीम लिखवाए जाते हैं फर्स्ट में ही। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप मान लो अच्छी नहीं है अभी, अब अच्छी है पर आपको और अच्छी करनी है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए मेरी स्पाउस के साथ की रिलेशनशिप में। रोमांस चाहिए, लव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, जो भी आपको कोऑपरेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो भी चाहिए तुरंत ही वो याद करने लग जाओ कि आपको चाहिए क्या। Then you are attracting that frequency, that magnetic power towards you. Okay, so I hope this point is clear here. Yes. Okay. A change of feeling is a change of destiny. Neville Goddard. Neville Goddard. New thought author. Look at the list of feeling frequencies, and you will see that no matter what the subject in your life, there are many different feeling frequencies. And you determine the outcome of each subject through how you feel about it. You can feel excited, happy, joyful, hopeful, worried, fearful, or depressed about money. You can't feel aesthetic, passionate, blissful, discouraged, and anxious about your health. These are the These are the different feeling frequencies, and whatever feeling frequencies you are on is what you will receive. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अभी नोट करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला मनी के बारे में, या तो आप बहुत ही हैप्पी जॉयफुल फील करते हो, या तो फिर आप हमेशा वरीड फियरफुल फील करते हो, या डिप्रेस फील करते हो। अगर हेल्थ के मामले में अगर देखने जाए तो या तो आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही ब्लिसफुल फील करते हो, पैशनेट फील करते हो, या तो फिर आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत एंग्शियस फील करते हो या डिस्करेज हो जाते हो। अगर कोई कुछ पेन आ गया, कुछ भी आया, तो आप अच्छा फील नहीं करते हो, जो भी है। तो डिफरेंट एरियाज में जाके भी आप ये देख सकते हो कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे हो अभी इस टाइम पे। रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, आपके खुद के जो काम है उनके बारे में आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होते हो। अपने आप को बहुत ज्यादा अभी एनालाइज करो, क्या थॉट्स है, क्या फ्रीक्वेंसीज है, क्या फीलिंग्स है, ये आपको समझनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप गुड फीलिंग्स में हो, इसका मतलब है आप लव वाली फीलिंग्स में हो। अगर आप वहां पे बैड फील कर रहे हो मनी के बारे में या हेल्थ के बारे में, तो समझ लो वहां पे आप लैक ऑफ लव है, कुछ ना कुछ वहां पे आपने कम प्यार दिया हुआ है। तो वहां पे आपको अपने प्यार की क्वांटिटी बढ़ानी है, अपनी ग्रेटिट्यूड की क्वांटिटी बढ़ानी है। क्योंकि आप देख सकते हो ग्रेटिट्यूड यहाँ लव के आगे, उसके पहले ग्रेटिट्यूड है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रख के अपनी फ्रीक्वेंसी पे हमेशा ही नजर रखनी है। ओके, सो वी विल रीड फ्रॉम हियर टुमारो। तो आज अपना पावर बुक का यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सो लेट्स रीड अवर हार्ट थॉट फॉर टुडे। ओके, लेट मी शेयर। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है? Anybody has any doubt regarding the power book or magic book? Okay, perfect. No. All right, so let's do our heart thought for today. So feel your heart opening and know that there is room in there for you. So अपने दिल को हमेशा देखो, वहां पे बहुत सारी जगह है आपके लिए।
तो ये आप एक्सप्लोर करो. I treat myself with unconditional love. If your childhood was full of fear and battling, and you mentally beat yourself now, you are continuing to treat your inner child much the same. The child has no place to go within you. Love yourself enough now to go beyond your parents' limitations. They did not know any other way to train you. You have been a good little child for a long time, doing exactly what mommy and daddy taught you. It is time for you to grow up and make adult decisions that support and nourish you. So जो भी आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कोई अगर लिमिटेशंस डाली है, क्योंकि वो जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे उस टाइम पे, जो भी उनको पता था उनके हिसाब से उन्होंने आपको ट्रेन किया, तो वो आप भूल जाओ जो भी था. अभी आपके पास चॉइस है कि आप अपने लिमिटेशन से बाहर आके जो भी लिमिटेशंस है उसमें से ग्रो अप करके अभी आप ऐसे डिसीजंस लो जो आपको, जो लाइफ में आपको सपोर्ट करती है, आपको नरिश करती है. वैसे डिसीजंस लेना स्टार्ट करो अपनी लिमिटेशंस में बाहर आके. और अगर आपका चाइल्डहुड बहुत ही फियरफुल और ऐसा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं पे अपने आपके इनर चाइल्ड हो जिनको आप अपने अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, अभी भी वो इनर चाइल्ड के पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाके वो एक अच्छा फील कर सके अंदर. तो ये आपको ही समझना है, आपको अपने आप को इतना प्यार देना है कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो सेफ फील करे, वो उसको एक सिक्योरिटी फील होनी चाहिए. तो ये मिरर वर्क की जो बुक है, इसमें भी आज ये जो डॉक्टर अलका ने भी बताया कि वो अभी मिरर वर्क बुक कर रही है, उसमें अपने इनर चाइल्ड को लेके वो इतनी सारी चीजें करती है, वो जो एंजॉय करती है. तो जब मिरर वर्क में एक दिन आती है, उसकी प्रैक्टिस यही होती है कि आप अपने इनर चाइल्ड को लेके उनको साथ में घूमो और ऐसी चीजें करो जो आपके आपके इनर चाइल्ड को पसंद है. मान लो आप जब बच्चे थे, आप जब चाइल्डहुड में थे, आपको क्या ऐसी चीजें थी जो आप बहुत पसंद करते थे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो भी एज है, इट डजंट मैटर. आपकी जो भी एज 70 है, 60 है, 50, 40, जो भी आपकी एज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके अंदर के चाइल्ड को बाहर लाओ, उसके साथ खेलो. आप खुद ऐसी चीजें करो जो भले चाइल्डिश लगती है, लोगों को चाइल्डिश लगे, कोई बात नहीं, आपको पसंद है आप करो. मान लो आप बचपन में ऐसी कोई चीजें खेलते थे, बाहर जाके मे बी केज खेलते थे, आपको बहुत मजा आता था, तो वो आप अभी भी कर सकते हो. खुद के साथ खेलो, अगर कोई नहीं है तो जाके जो भी अच्छी चीजें हैं वो करो. जैसे इन्होंने बोला कि वो एक आश्मिन में ये चीज करवाते हैं सेशन में कि जैसे 10 लिटिल फिंगर्स, तो ऐसे ऐसे शेक करो पूरे बॉडी को, ऐसे चाइल्ड के जैसे बिहेव करो. तो कभी कभी क्या होती है, अगर आप ऐसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज में हैं, तो ये सब चीजें करने से क्या होता है, आपकी जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ड्रॉप हो जाएगी और आप नई फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे. तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है. तो आप खुद चाइल्ड बन जाओ. अभी ऐसी कोई आपकी उम्र नहीं हो गई है कि आप इतने सीरियसली लाइफ को लो. लाइफ को टेक इट इजी, एकदम अच्छे से इजीली लाइफ को लो. जो भी आपको पसंद है करो, जो चीजें आपको अच्छा फील करवाती है वो करो, भले वो चाइल्डिश ही क्यों ना हो. अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस करो. कोई भी ऐसा फनी म्यूजिक लगा दो, फनी म्यूजिक पे फनी डांस करो. कोई आपको जज नहीं कर रहा है, खुद को भी जज मत करो, और जो चीजें पसंद है वो करो, बिंदास होके करो. पता नहीं आपको ये सब चीजें आपको इतना काम आएगी खुद को प्यार करने के लिए, लाइफ को प्यार करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए. ये सब चीजें बहुत काम आएगी. पता है आपको जो लाफिंग क्लब्स होते हैं, कई लोग वो लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं और वो सीरियसली वो बहुत काम करती है वो चीज. आपको लगता है ये क्या है, सब सिली लाफ करते हैं, पार्क में जाके ये करते वो करते हैं.
पर ऐसा नहीं है, वो चीजें रियली अफेक्ट करती है और आपको आगे बढ़ने के लिए वो बहुत हेल्प भी करती है। जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालती है थ्रू लाफिंग, जो एक लाफिंग की थेरापी आप बोल सकते हो। तो जो भी है, जो भी आपको अच्छा फील करवाता है करो। ऐसी ऐसी सीरियल्स देखो जो जो आपको अच्छा फील, प्लीज ऐसी सीरियल्स मत देखो जिसमें आप नेगेटिविटी में जाने के बहुत सारे चांसेस है। किसी ने किसी के साथ ये खराब कर दिया, किसी ने ये कर दिया, प्लीज ऐसे सीरियल्स को बंद कर दो जहाँ पे वही सास बहू का चलता रहता है, या इतने गंदे लोग होते हैं। ऐसे लोग नहीं है दुनिया में, सीरियसली। सीरियल को देख के आपको लगता है कि बाप रे सभी जगह पे बस ऐसे ही गंदे लोग ही भरे हुए हैं, पर लाइफ में ऐसा नहीं होता है, सच्ची बोलूं तो आप ऐसी चीजें देखें जहाँ पे आप लोगों को और ट्रस्ट कर सकते हो, लोगों को और अच्छे से आप वो कर सकते हो। हकीम, आपको कोई क्वेश्चन है? यू रेज योर हैंड, आपको अनम्यूट हेलो करके। हेलो। यस, हाँ 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 जी 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 हेलो। हाँ यस लेफ्ट। हेलो यस, वी कैन हियर हेलो। यू हकीम, यस वी कैन हियर यू। મને ક્વેશ્ચન એમ છે કે ઘણીવાર આપણે ટ્રાય ના કર્યું તો આપણાથી કંઈક ખોટું કામ થઈ જાય, જેવી રીતે હું આગળ લાસ્ટ 6 મંથ પહેલા મારા બાઇક ચલાવતો તો 2-3 વારમાં પપ્પીઝ મારા બાઇકના ટાયરના અંદર જ આવી ગયા એમ, એવું 2-3 વાર થયું એમ. ને પછી બીજી અમુક વાર શું છે, ગ્લાસની કે વસ્તુ હોય એ મારાથી બ્રેક થઈ જાય છે. હમણાં છેલ્લા 3-1 મહિના કન્ટિન્યુઅસલી થાય છે, દર 15 days થાય એટલે મારાથી કંઈક ને કંઈક વસ્તુ બ્રેક થઈ જાય એમ. એ બધી વસ્તુ ના થાય એના માટે શું કરવું જોઈએ? જે કઈ भी नहीं આપણે करવું જોઈએ, એના માટે कुछ भी नहीं करना है। सॉरी हिंदी में मैंने नहीं बताया आपको कि जैसे जा रहे कहीं पे भी अपन नहीं इच्छते वो काम हो जाता है ऑटोमेटिक, गलत चीजें हो जाती है। जैसे पपीज आ गए बाइक के अंदर 1-2 बार में से, और ग्लास की कुछ चीजें ब्रेक हो जाती है, हाथ से छूट जाती है 2-3 बार। ये 2-3 मंथ में कंटिन्यूस मेरे से हो रहा है। अभी आज मॉर्निंग में भी हुआ, अभी लंच टाइम में, कि मेरे हाथ से जो अपना नमकदानी रहता है ना वो ब्रेक हो गई, क्रिस्टल ब्रेक। तो मम्मी ने, मेरे वाइफ ने बताया कि तेरे बार बार ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन यानी क्या हो सकता है? इसका रीजन और कुछ नहीं है, एक तो आप ये ज्यादा उसको ये फ्रीक्वेंसी अभी देते भी जा रहे हो। अभी क्या है, ओके अपने आप को माफ करना सीखना पड़ेगा आपको। एक तो फर्स्ट चीज तो ये है कि अपने आप ओके को फॉरगिव करना है, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये जो ओके चीजें हुई उसको बस अभी एक सरल उपाय अभी के लिए बताती हूँ। ये मोमेंट के अंदर आप क्या करोगे, जाओ ये सब ओके चीजें लिख दो। अगर आप 9 से 12 के टाइम में लिख सकते हो, रात को 9 से 12 के टाइम का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। सनसेट के बाद का भी टाइम ले लो, वो टाइम में भी अगर आप ऐसी जो चीजें हैं जो आपको छोड़नी है लाइफ में, जो आपको बॉदर कर रही है, वो सब चीजें लिख दो। एक बार लिख के उसको फाड़ के फेंक दो। अभी मुझे ओके एक पर्सन ने फोन किया था, उनको कुछ था मन में, कोई क्वेश्चन था, तो उन्होंने मुझे फोन किया था कि ये वाली सिचुएशन में मैं क्या करूँ, ये चीज है मुझे बहुत बॉदर कर रही है। एक चीज थी उनको, उनकी बेटी को लेके, तो उनको बहुत बॉदर कर रही थी, क्योंकि बोले कि मैं इसको दिमाग में से निकालूं कैसे। मैंने उनको ये एक हम्म। सरल उपाय दिया कि आप ये लिख दो सब चीजें और उसको फाड़ के फेंक दो या फ्लश आउट कर दो। ओके आपको भी हकीम यही करना है। अगर आपको ये सब चीजें लग रही कि मेरे से बार बार हो रही है, आप अपने आप को या गॉड को आज लेटर लिख रहे हो, इसी तरह से लिख दो। अपनी अपनी और अपनी मतलब लैंग्वेज में लिख दो, गुजराती में, जो भी आपको जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो उसमें लिख दो कि गॉड मैं मेरे साथ हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ बराबर। लिखने के बाद उस वो पेपर को तो अलग ले लो, अब नया पेपर लो। नए पेपर में क्या लिखोगे कि गॉड ये जो भी मेरे से चीजें हुई मैं वो रिलीज कर रहा हूँ और अपने आप को मैं माफ करता हूँ ये सब चीजों के लिए। ओके तो जैसे ही आपको ये प्रैक्टिस लगेगी, ये एक दिन की बातें नहीं होती है हकीम। तो आपको एक तो ओके फर्स्ट ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आना है। जैसे जैसे ओके आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो अपने आप के लिए भी जो आपके मन के अंदर डाउट्स होते हैं, अपनी जो गिल्टी फीलिंग्स है, धीरे 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 आप बाहर निकाल पाओगे।
जैसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, उनको पता चल जाता है कब वो गिल्टी फीलिंग में जा रहे हैं, उनको पता चल जाता है कब वो कैसी फीलिंग्स में जा रहे हैं, अपने खुद के लिए डाउट में जा रहे हैं, फियर में जा रहे हैं, गिल्टी में जा रहे हैं। तो आपको भी ये सब, जब ये प्रैक्टिसेस आप करोगे, धीरे धीरे आप बहुत अवेयरनेस आ जाएगी। जैसे ही अवेयरनेस आ जाएगी, अभी क्या होता होगा कि मोर देन 50% ऑफ द टाइम मुझे पता नहीं आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, पर ये मुझे लग रहा है कि आप बहुत अपने आप को बहुत कोसते होंगे सभी चीजों के लिए। अगर वाइफ ने, मम्मी ने कुछ बोल भी दिया तो उसके लिए आप अपने आप को हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलते होंगे माइंड में, आपको पता भी नहीं, वो ऑटो पायलट पे होती है सब चीजें, कुछ चीजें ऑटो पायलट पे होती ही जाती रही अंदर। तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ही आ जाते हो जिसकी वजह से ये बार बार ऐसी चीजें होती है, समझे आप? जो फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो, यस, जो फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो यूनिवर्स में, फ्रीक्वेंसी यही है जिसके वजह से आपके साथ बार बार ये चीजें होती है। तो अभी बस आपको आज के लिए जो मैंने ये उपाय बताया वो आप करें। अगर आपको सेल्फ डाउट रोज रोज हो रहा है तो रोज रोज ये चीजें लिख दे। देखो आप अगर आगे, आपने अगर डॉक्टर अलका को सुना होगा तो वो भी बोल रही है कि वो इतना लिखती है, क्योंकि लिखने से ये सब चीजें रिलीज होगी। अपना पास्ट रिलीज करना है तो हमें लिखना बहुत जरूरी है। यानी कैसे भी करके एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा। लिखना एक इजीएस्ट वे है एक्सप्रेस करने का। मुझे पता नहीं आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, और चीजों से बहुत सारी चीजें होती है जिसके थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो ये सब चीजें, पर मुझे अभी जो सरल उपाय लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप आर्ट के थ्रू भी ये कर सकते हो, कुछ आर्ट अपने ऐसा बना लिया जिसके थ्रू भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप के बारे में। जैसे पता है, आप, हमने तारे जमीन है मूवी देखा था, सभी ने देखा होगा, बहुत ही रिमार्केबल मूवी था। उसमें जो वो बच्चा था वो अपनी फीलिंग्स को अपने आर्ट के थ्रू वो एक्सप्रेस कर रहा था, पर एक टाइम पे ऐसा आया, वो इतना लो फील करने लगा, वो इतना लो चला गया कि वो उसने आर्ट भी करना बंद कर दिया था। पता है, जब वो आर्ट करता था तब तक तो भी वो खुश रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो एक्सप्रेस कर रहा था जो भी वो फील कर रहा था अंदर। पर जैसे ही उसने आर्ट भी बंद कर दिया उसके बाद तो वो पूरा डिप्रेस हो गया था उस टाइम पे। हेलो, यस, कैन यू हियर मी? तो यही चीजें हैं जो आपको कुछ ना कुछ ये सप्रेस फीलिंग्स होती है, उसको आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे एक्सप्रेस करना होता है लाइफ में। हमें ये एक बहुत ही अच्छी चीज मिल गई है कि चलो हम लिख सकते हैं। खुदा ने हमें ये अच्छी एक प्रैक्टिस दी है कि हम लिख सकते हैं। लिखने पे क्या होता है, आप थॉट्स को आप ऑर्गेनाइज कर पाते हो। देखना हकीम, आप जब अभी लिखने बैठोगे, इनिशियली आपको होगा कि मैं क्या लिखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी ये लिखना, एक स्टार्ट करना, एक अपने आप में एक प्रैक्टिस होती है। पर लिखने जब लगोगे आप चीजें बाहर आती जाएगी। जैसे ही आप लिखना चालू करोगे, मे भी ऐसा होगा कि इनिशियली आपको शायद नहीं भी आएगा, कोई बात नहीं, बी जेंटल विथ योर सेल्फ और लिखना चालू करो जो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू गॉट योर आंसर। जी जी, थैंक यू। ओके विनीता जी, सॉरी आज ज्यादा ही लेट हो गया शायद। या ओके, सो लेट्स डू अवर मेडिटेशन फॉर टुडे, or you all getting late, whatever you want to do. If you are getting late and if you don't want to do the meditation, we can I would like to do meditation. Okay, perfect. So yeah, यहाँ पे जो भी लोग हैं जो बहुत रेगुलर है उनको ओके। अलिफ्या, यस विनीता जी। या ये मैं थॉट का पिक भी भेज देना ना। हाँ, मैंने कल भी आज सुबह जैसे 5:30 बजे तक आया। हाँ, तो सुबह 5:30 बजे आया ना, मैं सुबह जितने बजे उठती हूँ तो सबसे पहले ब्लेसिंग्स लिखती हूँ, फिर अफर्मेशंस लिख लेती हूँ। हाँ, सॉरी तो जब तक आया मैं लिख चुके थे। हाँ, फिर मैंने वीडियो से निकाला, फिर लिखा। विनीता जी, मैं क्या करती हूँ, अभी आता है ना तो ऊपर की 2 लाइनें ने तो अभी पेन लिख देती हूँ। सुबह में
ये निकालो, टाइम चला जाता है, इसलिए हाँ वही अभी इसीलिए। अभी आता नहीं तो उसी टाइम पे अभी मैं लिख लेती हूँ, और सुबह में वो 7 टाइम लिख देती हूँ। आई हाँ ट्रीट हाँ माई सेल्फ विद अनकंडीशनल लव, ऐसा मैं एक पेज पे लिख दिया, सुबह में जल्दी जल्दी लिख दूंगी, क्योंकि हाँ ये निकालो इसमें टाइम जाता है। तो मैं हर हाँ रोज अभी वीडियो से ऐसा ही करती निकालने। हूँ कि बहुत ही ये अच्छी ऊपर आदत की है। 2 ये लाइन है वो ऐसा लिख देती हूँ। और एक और चीज आप ये कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब ये चल रहा है अच्छा, ना। हाँ ये हाँ भी हाँ થાય પણ હું તો આવી રીતના લખી દઉં, એક પેજ પર લખી રાખ્યું, આઈ ટ્રીટ માય અનકન્ડિશનલ લવ લખી દીધું, એટલે સવારમાં 7 ટાઈમ में फटाफट लखी राख्યું। यस, वो भी कर सकते हो, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, तो आपके पास होगा, कभी भी आपको मैंने ले रेफर भी लिया करना है। स्क्रीनशॉट। या हाँ तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस है, पर हाँ मैं ट्राई करूंगी कि आपके मॉर्निंग होने से पहले भेज दूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी ये मेरा सेशन खत्म होगा, उसके बाद कल मेरी जॉब थी, कल अच्छा था कि थोड़ी लेटर इन द डे थी मेरी जॉब, तो जैसे आज तो मेरी जॉब नहीं है, पर फिर मैं जॉब में बिजी हो जाती हूँ, घर पे आती हूँ तो फिर थोड़ा ऐसा हो जाए कि मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभी, इतनी सारी चीजें चल रही अच्छा, होती नहीं, अब हाँ वो तो આ होता है। બધાને આ રીતના કહી દે એટલે બધા એ રીતના કરી નાખશે हैं। બધું। या नहीं कने नहीं, भी मैं टाइम ना होए हमें। भेजूंगी, भेज भी दूंगी ग्रुप में, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मोस्टली आई ट्राई टू सेंड इट, बट अभी 2-3 दिन से ज्यादा ही थोड़ा बिजी था, तो इसलिए नहीं भेज पाई, पर मैं आई विल डेफिनेटली शेयर। कैसा लगा विनीता जी मेरा? आइडिया, नहीं मम्मी बहुत का आइडिया अच्छा है। कैसा लगा? हम सोचे मेहनत किया, बीच हम से किया सोचे था कि पहले लिख से। लेते, लेकिन फिर हम क्लास मैंने अपने रूम लिखी की है जगह ऐसे। दूसरे दूसरी जगह के करते हैं। तो मैं तो उधर से उठ के इधर आके लिख देती हूँ साथ में मोबाइल हाँ लेके हम्म, स्क्रीनशॉट भी बेस्ट है। हाँ वो भी कर लो। हाँ स्क्रीनशॉट बेस्ट है। यस यस, स्क्रीनशॉट में हमेशा यही करती हूँ। मैं मान लो सेशन में हूँ और मेरी कोई ऐसी बात छूट भी गई या मुझे वापस रेफर करनी है, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, मैं तुरंत स्क्रीनशॉट लेके फिर वापस पढ़ती हूँ। ओके, सो थैंक लेट्स यू। डू आवर मेडिटेशन। बाय एंड सी यू इन Okay, टुमारो। whoever has to leave, that's fine. Thank you so हाँ much for joining in. We will do our meditation. Okay, so thank you, everybody. Okay, so Okay, bye. I am leave also. okay, Hakim. Thank you for joining in. Thank you. Thank you. Okay, let me put nice music on. Okay, so are you able to listen the music or it's too loud? Oh, yeah. Okay. Okay. So back straight, feet touching the ground if you are sitting on a chair, and your hands facing the heavens above. And wear a big smile on your face. Now let's close our eyes and take deep breaths. Let's inhale gratitude.
Release all the negativity from your body. Release all the tension, stress from your muscles. Again, take a deep breath in. Release. Again, take a deep breath in. Release. Life is a truly blessing. Thank you, Almighty, for all these blessings in my life. I feel so blissful in this particular moment, because now my mornings are so beautiful. मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ मॉर्निंग में, अपने आप को नर्चर करती हूँ, अपने आप के अंदर अच्छे विचार डालती हूँ मॉर्निंग में। सो शुक्रिया, मेहरबानी आपकी गॉड, जिसकी वजह से मैं ये फील कर पा रही हूँ। I have so many things to be grateful in the morning. Thank you for the lovely bed that I sleep on. Thank you for the pillow. इतना कोजी बेड देने के लिए, इतना कोजी पिलो देने के लिए धन्यवाद। इतना अच्छा घर देने के लिए धन्यवाद, इतना अच्छा बाथरूम देने के लिए धन्यवाद। सुबह उठने के साथ तुरंत ही पानी टैप वाटर में आ जाता है। जो भी पाइप जिसने भी लगाए हैं, जो भी इन्होंने पूरे सिटी में, पूरे कंट्री में जो पानी की जो व्यवस्था की हुई है, उनके लिए बहुत सारा धन्यवाद। उन सब लोगों को जिन्होंने ये नियामतें हमारे लिए दी है, जिन्होंने काम किया है ये सब चीज़ों के ऊपर। मेरे मिरर के लिए धन्यवाद, जिस मिरर में देख के मैं अपने आप को प्यार कर सकती हूँ, अपने आप को मैं समझ सकती हूँ कि मेरे अंदर है क्या। सो मिरर के लिए धन्यवाद। ये अच्छे कोजी कपड़ों के लिए धन्यवाद, जो कपड़ों में पहन के मैं सुंदर दिखती हूँ, जो कपड़ों में पहन के बहुत ही मुझे कंफर्टेबल फील होता है। गर्मी है, ठंडी है, सभी तरह के कपड़े हैं मेरे पास, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। मेरे पास इतने अच्छा टूथपेस्ट किसी ने ये बनाया है, जिसकी वजह से हम अपने टीथ को इतना अच्छा क्लीन कर सकते हैं, अपने माउथ को क्लीन कर सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये मॉर्निंग शावर के लिए धन्यवाद, जो हम होओपोनोपोनो शावर करते हैं, जिसमें हम अपने बॉडी को पूरा धन्यवाद देते हैं, अपने बॉडी से माफ़ी मांगते हैं जब भी हमने उनके लिए कंप्लेन की है किसी भी चीज़ के लिए। सनराइज के लिए धन्यवाद, जिसको देख के हमें एक नई उमंग होती है, जिसको देख के हमें एक नए दिन की एक नया एंथुजियाज्म होता है, एक्साइटमेंट होता है कि आज का दिन क्या लेके आएगा, क्या वो अच्छी अच्छी चीजें आज का दिन लाने वाला है। तो ये सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गॉड। माई लाइफ इज ट्रूली अ ब्लेसिंग, लाइफ इज ट्रूली मैजिकल।
and I am powerful, strong, and magnificent being of light. I love myself exactly as I am. I accept myself exactly as I am. I value and trust myself fully and completely. All my relationships are getting better and better. In every way, I am getting better and better each day. I release all my past limitations, beliefs, anger, hurt, guilt, everything. And I'm completely free now. I'm a free bird to enjoy all the possibilities life can bring me. All the totality of possibilities within me. I know all good things are waiting for me to just embrace them, to open my heart and embrace them completely. So today I open my heart completely and I expand my hands towards the universe. I'm open and receptive for all good in my life. I'm open and receptive, and I'm thankful so much, God, to the universe for everything currently in my life. For all the angels and guardians always directing me, always guiding me. Let's bring our heart on the our hands on the heart level, and again thank life for bringing all these nice experiences in our life so we could learn, we could grow. Now let's get our hands together. Join our hands together in the heart area. अपने हाथ को जोड़ के अपने बॉडी के लिए थैंक्स बोले. Thank you, God, for giving this beautiful gift of life. I'm healthy each day. I'm getting better and better. I'm healthy, energetic, vibrant, and magnificent. All my organs are working perfectly every single day, every single moment of my life. And thank you for that. I thank all my digestive organs to digest everything so nicely and bring me the nutrition that my body needs. I thank all the muscles in my hands and my legs, in my whole body to strengthen me, to support me. So I can do whatever I want to. बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ देने के लिए धन्यवाद. Okay, let's rub our palms together and let's thank each part of our body. Let's bless each part. Our conscious, subconscious mind, forehead, eyes, eyebrows, hair, ears, whole face, lips, teeth, chin, tongue, mouth, a neck and throat, food pipe, esophagus, shoulders, hands, fingers, fingernails, whole spine area, hips,
heart, chest and lungs. अपने हार्ट बीट को सुने और अपने हार्ट को बहुत सारा थैंक यू बोले. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. Now let's move on to the digestive organs, liver, stomach, large and small intestine, all the reproductive organs. Thank you so much. Thighs, knees, calf muscles. Thank you, my body. Thank you so much. My feet, my toes, toenails. Thank you, thank you, thank you. Trillions of cells, tissues, fibers in my body. Thank you. Thank you, Alifia. Thank you. Thank you. Thank you so much for joining in. How is the practice going? Yeah, very nicely. I'm doing it. Gratitude, very sincerely, I'm doing. Very nice. Very good, very good. And I could get up today at 4:30. Oh, wow. That's amazing. Because for a long time, yes. I wanted to, I get up, but off and on, sometimes I miss the time. But I want to keep it consistent. Let me see. Now, tomorrow is a challenge. No, you will be fine. Just tell your mind that I'm going to do it. And जैसे हातिम ने लास्ट टाइम पूछा था, तो मैंने पता है वो 5 सेकंड रूल बताया था. तो उनकी वाइफ का मेरे पर शेयरिंग आया था कि आपके ये 5 सेकंड रूल ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है. उनका शेयरिंग आया कि वो भी अभी रोज उठ रही है, वो भी मेरे सेशंस देखती होगी. उसके बाद वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं होती है शायद, पर वो देखती है. तो उनकी वाइफ ने 5 सेकंड्स 5 सेकंड्स क्या है वो? 5 सेकंड रूल क्या है, मैंने उस दिन पता नहीं, आपने उस दिन नहीं ज्वाइन किया था शायद. हुआ क्या? अच्छा. हाँ, तो उसमें हातिम ने ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने उनको ये आंसर दिया था कि 5 सेकंड रूल में क्या होता है. एक ये क्या नाम है उनका, एक लेडी है यहाँ पे, अच्छा. हमारे जैसे ही लेडी थी वो. उसकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ ब्रेकडाउन आया उस टाइम पे. तो फिर उसने क्या किया कि उस टाइम पे 3 महीने तक तो वो ऐसे ही पड़ी रही बेड में. उठना था उसको, रोज उठना था सुबह. वो रोज अलार्म रखती थी और वो नहीं उठ पाती थी. 3-4 महीने के बाद क्या हुआ, एक दिन उसको खुद अचानक से मतलब अलार्म बना, वो 5 सेकंड्स के अंदर वो उठ गई. उसके बाद पता नहीं उसको अंदर से ये चीज आई कि अगर वो कुछ भी 5 सेकंड्स के अंदर करती है, तो उसने और ज्यादा रिसर्च भी किया उस मामले में. तो क्या होता है कि 5 सेकंड्स के अंदर अगर आप कोई डिसीजन ले लेते हो, अंदर से कोई चीज आई और आपने तुरंत 5 सेकंड्स के अंदर कर दी वो विंडो में, तो क्या होता है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है जो टेक ओवर करने वाला था वो नहीं कर पाता है. अभी क्या होता है कि हम क्यों नहीं उठ पाते, हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है वो हमेशा हमारे कंफर्ट जोन में लेके जाएगा, क्योंकि उसकी ये हैबिट ही उसको बनाया ही ऐसे गए कि हमारा ये कॉन्शियस माइंड हमें हमेशा ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे हमें कंफर्ट फील होता है. कुछ भी अनसर्टेनिटी है या कुछ भी डिस्कम्फर्ट है, वो वहां पे हमें नहीं लेके जाएगा. क्योंकि अगर हमें उठने की आदत नहीं है सुबह, तो ये हमारे लिए एक डिस्कम्फर्ट हो गया. तो माइंड तुरंत अलार्म बजेगा, माइंड बोलेगा कि नहीं यार, जा यार, तू तो कितना लेट सोई थी, मत उठ यार, कंफर्ट तो उठने में नहीं है, बहुत मजा नहीं आएगा, तुझे हेडेक होगा, तुझे ये होगा, वो हमारा माइंड सब चीजें बोलता है. पर वो जो विंडो में अगर आपने ये डिसीजन ले लिया और आप उठ गए उस टाइम पे, वो जो 5 सेकंड्स का विंडो है, किसी के लिए वो विंडो कम भी हो सकता है. तो अगर आप ये विंडो में उठ गए, तो फिर वो कॉन्शियस माइंड को आपने टेक ओवर कर लिया बिफोर इट टेक्स यू ओवर. तो ये बहुत ही अच्छा रूल है. मैंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया था, अगर आपको चाहिए तो मैं वापस शेयर कर दूंगी आज. हाँ, वो इंग्लिश में है पर उसमें सबटाइटल्स भी है, तो आप समझ पाओगे क्या कह रही है. ओके, सो मैं वो बहुत ही अच्छे से समझा रही है वो लेडी उसमें. उसका क्या नाम था, हाँ,
मेल स्मिथ करके, या नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बट उसने बहुत ही अच्छे से ये चीज समझाई। उसका ये एक तरह की ये डिस्कवरी हो गई उसके इतने खराब टाइम में, उसने ये चीज को डिस्कवर किया जब वो बहुत ज्यादा। I saw that video. I think I saw that video. अच्छा, 5, 4, 3, 2, 1. She says, right, no? right. She thinks, right. You start counting 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. हाँ. और उसी टाइम पे उठ जाओ तो आपका उठ जाओ. अच्छा. हाँ, Correct. I saw that. एक दिन में कई सारी चीजें होंगी जो आपका अंतर मन कहता है कि यार तू ये कर ले, पर फिर कॉन्शियस माइंड आके बोलेगा कि नहीं यार जाने दे। वही तो ये 5 सेकंड्स का रूल आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। 5 મિનિટ સુઈ જાઓ, જો આરામ કરી લો, એવું વિચારે ને તો જતા રહેશે। यस यस, अगर ऐसा अलार्म को स्नूज कर दिया तो फिर भूल जाओ, वो 5 मिनट हमेशा आधे घंटे में ही चेंज हो जाती है। मेरी भी ये हैबिट थी, अलार्म वगैरह જ ઉઠી જઈએ છે। अलीशा, मैं भी अपना शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे भी ये बहुत हैबिट थी स्नूज करने की। सालों से ये प्रैक्टिस थी मुझे स्नूज करने की। स्नूज यानी 5-5 मिनट का स्नूज रख के मैं 15 मिनट में उस पर कभी कभी मैं हार जाती थी, सो जाती थी, ऐसा होता था। लेकिन जब से ये सेशन अटेंड किया है तब से बहुत ये हो गया है कि नहीं, अभी उठ ही जाती हूँ मैं, कुछ भी मुझे बॉदर नहीं करता है। हाँ, और उठ भी जाते हो फिर पूरे दिन में इतना ही एनर्जेटिक और वो भी फील करते हैं। वो भी फील। हाँ, ऐसा भी नहीं कि उठने के बाद वो स्लगिश फील करते हैं, या जैसे मैं 4:30 बजे उठी, अभी मैं एकदम फ्रेश हूँ। उस टाइम पे जब उठी थी तब नींद आ रही थी, पर अभी मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ। મને તો એક કે બગાસું કે એવું કશું લાગતું જ નથી ઉઠ્યા પછી બી। मम्मी की तो बहुत ही अच्छी ये हैबिट बहुत टाइम से है कि वो एक टाइम पे उठ जाती है। Okay, thank you. Then see you all tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow I have work. Tomorrow also I work. Let me see. I'll try to join. Okay, no problem. Thank you so much. Thank you. Love you.